Hello everyone. Very good evening everyone. Welcome back to weekly webinar cum training sessions of Rajlakshmi Solutions. Behalf of Rajlakshmi team, I would like to welcome to all attendees here. So thank you so much for joining here today. I'm Sampada representing Rajlakshmi Solutions Private Limited, and today we are going to talk about Tally Prime. So before moving ahead to the topic, let's introductions of Rajlakshmi Solutions Private Limited. So we are into software sales, services, solutions, implementations, and development. So we are in software. First, second, we are SAP B1 into SAP B1, and third, Bittrex 24, and fourth one is Skill India. So speakers are here. So presentation will be conducted by Miss Priyanka. Miss Priyanka, are you here? Yes, ma'am. Yeah. And live demonstration will be done by Mr. Krishna. Krishna, are you here? Yes, ma'am. Hi, good evening. Yeah, welcome Krishna and Priyanka. And as usual, the complete review and overview recap done by resource person, Mr. Bhagwati Prasad Dandaria. Sir, are you here? Yes, Shamda, I am available over here. Yeah, thank you. Yes, sir. Thank you. Welcome. So, Priyanka, go with your presentations. First, introductions yourself. Yes, ma'am. Thank you. Kindly please share the screen. Hello, good evening, everyone. Myself, Miss Priyanka Prajapati, representing Rajlakshmi Solutions Private Limited. Here is a family of Rajlakshmi Solutions. Today, we will discuss about the most important part of Tally Prime, that is configuration of GST in sales and purchase. To move forward and see what is GST. The goods and services tax is a tax on goods and services sold domestically for consumption. The GST is a common tax used by the majority of country globally, which means जो product हम खरीदते हैं domestically उस पर goods and services tax लगता है, that tax called GST. The tax is included in the final price and the paid by the consumer at the point of sales and passed to the government by the seller. Now we will see Tally Prime में GST setup कैसे करते हैं. If you are using the GST features provided for regular dealer to maintain your books under the composition scheme, you can now start using the GST composition features. अगर आप GST features use कर रहे हैं आपके रेगुलर डीलर के लिए एंड आपके बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन एंड मैनेज करने के लिए, so now you can start using GST composition. To maintain books under GST, you need to change the registration type of composition, updated sales ledger and record transactions, create GST ledgers, stock item and purchase ledger. Now we will see GST composition rules in sales invoice in the next slide. You need not make any changes to the stock item and purchase ledger. The title of the printed sales invoice appear as per the requirement of GST rules. Under the rules of compositions, आपके stock item and purchase ledgers में कोई भी changes नहीं करना है. Printed sales invoice पर जो title appeared होता है वह as per GST rules के requirement के हिसाब से होता है. Now in a next slide, we will discuss rules provided as per GST composition. Before enabling the composition features, if you had defined the invoice title in sales purchase invoice print configuration, it will be overwritten by the title provided as per GST rule. अगर आपने sales या purchase printed invoice में invoice title pre-define किया है, वह title as per GST rules के हिसाब से overwritten होगा. Now we can see creation of stock item and ledgers in GST. You can create ledgers and stock item to record transactions under composition scheme of GST. अगर Tally Prime में आप stock item and ledgers create कर सकते हो आपके transactions record करने के लिए,
Some example are stock item, sales ledger, purchase ledger, GST ledgers, party ledger, etc. You can also create HSN code in GST as per category wise. So this is basic information about GST configuration in Tally Prime. It's end from my side. Thank you so much, everyone. Over to you, Krishna. Thank you, Priyanka. Very nice presentation. Hello everyone, welcome to Rajlakshmi Solutions Private Limited. Before going to start the practical session, I want to introduce myself. My name is Krishna Rane from Rajlakshmi Solutions Private Limited. तो आज के सेशन में हम यही देखने वाले हैं जीएसटी कॉन्फ़िगरेशन हम टैली प्राइम में कैसे सेट कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ पहले मेरा। ये स्क्रीन इज विजिबल? यस कृष्ण। यस, थैंक यू मैम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी जीएसटी का कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे हमको कैसे मेंटेन करना है, कैसे कॉन्फ़िगर करना है, हम अभी यहाँ पे प्रैक्टिकली देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से मैंने कंपनी क्रिएट की है। तो जीएसटी का जो कॉन्फ़िगरेशन है मुझे सेटअप करने के लिए सबसे पहले जाना होगा F11 फीचर्स में। तो जैसे मैं F11 फीचर्स में आता हूँ, पहले ERP 9 में आप देखते थे अकाउंटिंग, इन्वेंटरी, टैक्सेशन के लिए मुझे अलग अलग मल्टीपल्स बटन्स वहाँ पे दिए थे, जैसे F1 रहेगा, F2 रहेगा, F3 रहेगा। लेकिन जिन्होंने अभी तक प्राइम अपडेट नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप प्राइम में अपडेट हो जाओ, जो कि आपको एक ही जगह पे सब ड्रिल डाउन प्रोसेस यहाँ पे प्राइम में बहुत कम किया है। तो एक ही पेज पे आपको सब ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहे हैं, मिल रहा है। तो शो मोर फीचर्स, जैसे आपको ये ऑप्शन नहीं दिख रहे प्राइम अपडेट होके भी, तो यहाँ पे आपको शो ऑल फीचर्स पे पहले यस करना है। तो जैसे आप ये सब ऑप्शन यस करेंगे तो यहाँ पे आपको राइट साइड में एक ऑप्शन मिलता है टैक्सेशन का, दैट इज इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। पहले F9 जैसे ERP नाम हम यूज करते थे तो यहाँ पे पहले आपको F11 दबाना पड़ता था, F3 दबाना पड़ता था। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत इजीली वैसे यहाँ पे ड्रिल डाउन प्रोसेस कम किया है, एक ही पेज पे आपको सब कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे मिल रहा है। तो जैसे मैंने यस किया, यहाँ पे जीएसटी डिटेल्स का यहाँ पे आपको फॉर्म ओपन यहाँ पे हो रहा है। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, तो सबसे पहले हमको यहाँ पे डिफाइन करना है यहाँ पे आपका स्टेट, जो भी आपका कंपनी का स्टेट है यहाँ पे आपको पहले डिफाइन करना है। नेक्स्ट देखते हैं हम रजिस्ट्रेशन टाइप, रेगुलर या कंपोजिशन में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे रेगुलर लेता हूँ मैं। एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी, जैसे फॉर एग्जांपल आप यूजीएसटी की यहाँ से रहेंगे तो यहाँ पे आपको अदर टेरिटरी यहाँ पे आपको यस करना होगा। नेक्स्ट जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम, तो यहाँ पे जो भी आपका कंपनी का स्टार्ट है, वैसे भी जीएसटी अपना आया 1 जुलाई 2017 को, तो 17 से आप स्टार्ट कंपनी लेवल का जो भी डेट है यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। जीएसटी नंबर यहाँ पे आपका जो कंपनी का एज इट इज यहाँ पे डिफाइन करना है। नेक्स्ट पीरियोडिसिटी ऑफ जीएसटीआर 1, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी आपका जीएसटीआर रिटर्न फाइल का जो भी पीरियड है, कौन सा है, मंथली या क्वार्टरली, तो यहाँ पे वो पीरियड आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मैं मंथली लेता हूँ। एडिशनल फीचर्स में आपका यहाँ पे मैं ऑन करके देखता हूँ। तो यहाँ पे जो भी है टैक्स रेट कॉन्फ़िगरेशन जीएसटी का आप 4 लेवल से 4 तरीके से आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो। तो जैसे आपको पहले आता है कंपनी लेवल पे, सेकंड लेजर लेवल पे, स्टॉक ग्रुप लेवल पे, स्टॉक आइटम लेवल पे। तो अभी यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल आपको बता दूं, आपकी कंपनी को एक ही स्टॉक आइटम है, एक ही टैक्स रेट है, एक ही HSN नंबर है, HSN कोड है, तो यहाँ पे आप कंपनी लेवल से भी जीएसटी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, सेटअप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको नहीं दिखा था, स्टॉक आइटम लेवल पे हम दिखाएंगे मल्टीपल टैक्स रेट और मल्टीपल स्टॉक आइटम का कॉन्फ़िगरेशन कैसे सेट करेंगे। अदर जो भी इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसीप, ये भी आपको ऑप्शन यस और नो करने हैं, आपके ऊपर है, वो आप कर सकते हैं। इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज, समझो आप परचेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, यहाँ पे आप किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से कुछ परचेस कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन यस कर सकते हो। इनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन यहाँ पे नो ही रखेंगे फिलहाल। प्रोवाइड एलयूटी बॉन्ड वगैरह वो भी ऑप्शन आप यस कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं, लेकिन ये जीएसटी का पार्ट नहीं है, बाद में देख सकते हैं इसको। लास्ट सेशन अपना हुआ था ई-वे बिल पे और ई इनवॉइसिंग पे। जिन्होंने भी अभी तक देखा नहीं है आप यूट्यूब चैनल पे जाके लाइक शेयर करके सब्सक्राइब करके यहाँ पे देख सकते हो। तो फिलहाल के लिए जो भी जीएसटी का कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे मैंने सेट किया है, कंट्रोल ए करके मैं इसको शॉर्टकट के सेव करूंगा।
सेम कंट्रोल ए करके शॉर्टकट से इसको सेव करूंगा। नेक्स्ट हम आते हैं लेजर पे। जैसे मैंने कुछ यहाँ पे लेजर क्रिएट किए, मैं आपको अल्टर में जाके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो प्राइम में थोड़ा सा अलग है, लेकिन थोड़ा सा अपडेटेड है। यहाँ पे देख सकते हो लेजर में जाके सबसे पहले हमको प्राइम में यहाँ पे देख सकते हो मास्टर्स में यहाँ पे मुझे फीचर्स मिल रहा है अल्टर का। जो भी मुझे क्रिएट करना है कुछ भी, तो मैं यहाँ पे क्रिएट पे जाके कर सकता हूँ। कुछ मैंने क्रिएट किया है उसको अल्टर करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन अल्टर का दिया है। तो कुछ लेजर्स मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं, मैं आपको डिस्प्ले कर देता हूँ। कुछ पार्टीज मैंने यहाँ पे क्रिएट किए, जैसे सीरम एंटरप्राइजेस है मेरा, वो अंडर्स मेरा क्रेडिटर्स में है। मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, यहाँ पे आपको लास्ट वेबिनार देखा रहेगा शायद। तो जो भी आपके आउटस्टैंडिंग इनवॉइस है आपको डिस्प्ले होना चाहिए आउटस्टैंडिंग में, तो यहाँ पे वो मेंटेन बिल बाय बिल का ऑप्शन आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे क्रेडिट पीरियड भी आप दे सकते हो। नेक्स्ट मेलिंग डिटेल्स में यहाँ पे जो भी है पार्टी का एड्रेस वगैरह आप डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे मैंने स्टेट इसका लिया है महाराष्ट्र, मतलब ये लोकल टैक्स इनको लगता है, जैसे सीजीएसटी है, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, सेम एज इट इज। इसको रजिस्ट्रेशन टाइप आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कौन सी कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट इनका जीएसटी नंबर यहाँ पे प्रॉपर आपको डिफाइन करना है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं एक आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो भी है अब जो भी ईवे बिल निकाल रहे हैं टैली से, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है पार्टी टाइप के ऊपर। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप हम रेगुलर लेते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको पार्टी टाइप्स में डीम एक्सपर्ट का भी यहाँ पे शो हो जाता है। डीपली जो भी यस करेंगे, नेक्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कंट्रोल ले किया मैंने। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं श्याम एंटरप्राइजेस का मेरा एक लेजर है, ये मेरा डेटर्स में अंडर लिया है। जब भी मैं किसी को सेल्स करता हूँ तो मेरा हो गया डेटर्स, किसी से परचेस करता हूँ वो मेरा क्रेडिटर्स, बेसिक चीज है। सेम यहाँ पे आपको एड्रेस मेलिंग डिटेल्स में डालना है प्रॉपर। स्टेट पे यहाँ पे आपको डिफाइन करना है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट है, जो भी आप स्टेट से ट्रांजेक्शन कर रहे हो वो पार्टी का स्टेट यहाँ पे आपका प्रॉपर चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको यस ऑप्शन करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो पार्टी टाइप में जो भी है रजिस्ट्रेशन टाइप सेम एज इट इज जो बाहर दिया है अदर टेरिटरी सेक्टर का। मैं जैसे आपको बोला यूजीएसटी क्या दीव दमन बेटे जैसे लोकेशन है, तो उधर यूजीएसटी जैसे अदर टेरिटरी सेक्टर में आता है, तो ये ऑप्शन आप यस कर सकते हो। इसको कंट्रोल ले करके मैं फिर से सेव करता हूँ। यहाँ पे आपको एडिशनल एक ऑप्शन मिलता है, मोर डिटेल्स में भी आप देख सकते हो टैली प्राइम में। तो कुछ ऑप्शन यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहे हैं, जैसे ERP 9 में पहले नहीं दिखते थे, कुछ ऑप्शंस यहाँ पे एक्स्ट्रा भी चीजें दी हुई है। तो ये भी आप शो मोर क्लिक करके देख सकते हो। नेक्स्ट हमारे जो लेजर्स रहेंगे CGST, जैसे ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर में इनको लेना है आपको। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी GST में लेना है, टैक्स टाइप सेंट्रल टैक्स। नॉर्मल राउंडिंग पे आप रख सकते हो, राउंडिंग मेथड पे। इसको मैं कंट्रोल करके फिर से सेव कर देता हूँ। ऐसे जो CGST वगैरह जो भी टैक्सेस के लेजर है यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बना है। ये मेरा स्टेट टैक्स, ये GST सेम एज इट इज आपको रखना है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर लेने के बाद GST कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्स टाइप यहाँ पे GST लेना है। नेक्स्ट जो भी मैं यहाँ पे अभी बोल रहा हूँ, जैसे लोकल मेरा रहता है तो मेरा CGST रजिस्टर रहता है, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स और इंटीग्रेटेड टैक्स। जब मैं किसी पार्टी को आउट ऑफ महाराष्ट्र सेल्स कर रहा हूँ तो मेरा हो गया इंटीग्रेटेड टैक्स। आउट ऑफ स्टेट मेरा रहेगा तो इंटीग्रेटेड टैक्स कंपलसरी वहां पे आपको लेना है। तो यहाँ पे मैं आपको आगे दिखाता हूँ इसका कॉन्फ़िगरेशन का आपको कैसे बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे मैंने स्टेट टैक्स का जो लिया है अंडर स्टेट टैक्स लिया है। नेक्स्ट मेरा कुछ आउट ऑफ महाराष्ट्र सेल्स हुआ है तो उसके लिए मेरे IGST का भी मुझे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में लेजर बनाना होगा। IGST यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस अंडर GST, टैक्स टाइप यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स में लेना है। जो राउंडिंग मेथड आप नॉर्मल भी रख सकते हो, नॉट एप्लीकेबल भी कर सकते हो। कंट्रोल A किया मैंने, कंट्रोल A से मेरा जो भी है ऑटोमेटिक शॉर्टकट से सेव हो जाएगा। मैंने कुछ आउट ऑफ पार्टी का, जैसे मैंने बोला आउट ऑफ महाराष्ट्र मेरा एक गुजरात का पार्टी है समझो, चामुंडा एंटरप्राइजेस, तो उसके लिए मेरे कॉन्फ़िगरेशन क्या सेट करने हैं। यहाँ पे मैंने स्टेट लिया है गुजरात, ये मेरा समझो गुजरात का पार्टी है। तो यहाँ पे आपको जो भी है स्टेट प्रॉपर डालना है।
तो ये हो गया मेरा लेजर लेवल, जैसे पार्टीज का और ड्यूटीज एंड टैक्सेस के मैंने लेजर यहाँ पे कुछ क्रिएटर्स रहेंगे, डेटर्स रहेंगे, अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस मैंने इनको प्रॉपर डिफाइन किए हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं एंट्री लेवल पे, इसका हमको बेनिफिट क्या है, एंट्री लेवल पे कैसे हमको टैक्स सेट करना है। तो इसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने आपको बोला कंपनी लेवल पे, लेजर लेवल पे, स्टॉक आइटम लेवल पे, स्टॉक ग्रुप लेवल पे हम टैक्स डिफाइन कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक स्टॉक आइटम बनाता हूँ। क्रिएट में जाना होगा आपको सबसे पहले, नेक्स्ट हम जाते हैं स्टॉक आइटम। तो यहाँ पे मैं एक स्टॉक आइटम बनाता हूँ, आइटम ए करके। तो यहाँ पे मैं जिसको अब जैसे अभी आपको बोला कि अंडर आप ग्रुप लेवल पे भी टैक्स सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ एबीसीबी ग्रुप बनाता हूँ, इसके अंडर्स में जो भी मेरे स्टॉक आइटम आएंगे उनका HSN कोड सेम रहेगा और आपका GST रेट भी सेम रहेगा। तो आप स्टॉक ग्रुप लेवल पे भी GST डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे आप यस करेंगे तो जो भी है सेम एज इट इज विंडो हमने कंपनी लेवल पे भी देखा था, आपको ग्रुप लेवल पे भी शो हो रहा है। तो आपको कंपनी को समझो अंडर ग्रुप एक ही है, स्टॉक आइटम आपके मल्टीपल है, लेकिन उसका HSN कोड और परसेंटेज सेम रहेंगे GST के। तो यहाँ पे आप उसको डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ मैं, जो भी अभी टैक्स रेट है जो भी है स्टॉक आइटम लेवल पे एक बार देख सकते हैं। मतलब मल्टीपल आपके 18% का भी प्रोडक्ट है, आपके पास 20% का भी है, 12% का भी है। तो आप मल्टीपल स्टॉक आइटम को मल्टीपल GST नंबर विद HSN कोड आप मेंटेन कर सकते हो। तो यहाँ पे GST एप्लीकेबल करेंगे सबसे पहले, GST अंडर GST डिटेल्स हम यस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन जो भी है आपका स्टॉक आइटम का यहाँ पे डाल सकते हो, HSN कोड यहाँ पे जो भी है आपका डाल सकते हो। यहाँ पे ऑन वैल्यू रखना है, नॉन GST यहाँ पे जो है सेम सेटिंग रखना है। टैक्सेबिलिटी में आपको यहाँ पे आपको टैक्सेबल करना है। रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल, यहाँ पे जो भी है कॉन्फ़िगरेशन आप सेट कर सकते हो। इनपुट क्रेडिट आपको लेना है तो यहाँ पे यस कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं जैसे आपको बोला टैक्स टाइप, वैल्यूएशन टाइप, यहाँ पे रेट आपको 3 फील्ड दिख रहे हैं। तो इंटीग्रेटेड टैक्स में आपको समझो आउट ऑफ महाराष्ट्र 18% है, लोकल महाराष्ट्र 18% है। तो यहाँ पे मैं एप्स प्रोडक्ट को लगा देता हूँ, 18% मेरा टैक्स है। जैसे मैंने 18 डाला, नीचे आप देख सकते हो सेंट्रल टैक्स में और स्टेट टैक्स में अपने आप 9% डिवाइड हो गया। इसका मतलब आप एंट्री लेवल पे भी इसका इफेक्ट देख सकते हो। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब भी किसी का अपना प्रोडक्ट का स्टॉक आइटम का स्टॉक रेट चेंज होता है या कुछ भी HSN कोड भी चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे आपको ना ही इधर जाके उसको चेंज करना है या इधर से चेंज करना है, आपको यहाँ पे जाके डिटेल्स का एक फॉर्म ओपन होता है। इस प्रोडक्ट को मैं अभी सेव करूंगा कंट्रोल से, हम देखते हैं। फिर से मैं इसको अल्टर करने के लिए जाता हूँ, अल्टर लेवल पे यहाँ पे स्टॉक आइटम आइटम ए। जैसे मैं आपको बोला इस लेवल का समझो मुझे टैक्स रेट मेरा चेंज हो गया 18% से उसका चेंज हो गया 28%। तो आपको ना ही इधर आके चेंज करना है। तो यहाँ पे डिटेल्स में जाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे जो भी चेंज हुआ रेट है उसका कब से वो डेट का चेंज हुआ, समझो 1 तारीख से मेरा एप्लीकेबल था, लेकिन मेरा 1 मई से इसको चेंज हुआ रेट। तो यहाँ पे मैं उसको फिर से डिफाइन करूंगा। आप यहाँ से डिफाइन करेंगे तो सब टैक्स रेट ओवरराइड हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, सेम यहाँ पे आपको डेट वाइज रेट है मेंटेन करना है। तो ये हो गया मेरा स्टॉक आइटम लेवल का कॉन्फ़िगरेशन GST का। नेक्स्ट हम आते हैं वाउचर लेवल पे। जैसे मैंने आपको बोला किसी पार्टी से हम परचेस कर रहे हैं तो सबसे पहले हमको आना होगा परचेस वाउचर में। यहाँ पे सबसे पहले F2 से हम डेट चेंज करेंगे। 1 अप्रैल को मैंने परचेस का ट्रांजेक्शन किया था। अभी यहाँ पे देख सकते हो बहुत लोगों को ये शॉर्टकट किस मालूम नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे श्रीराम एंटरप्राइजेस लेता हूँ, तो मुझे यही कंपनी को, यही मास्टर को मुझे यहाँ से अल्टर करना है तुरंत, तो मैं यहाँ से कंट्रोल एंटर करके ऑन द स्पॉट अल्टर कर सकता हूँ। कुछ भी मेरे चेंजेस करने हैं लेजर में तो यहाँ पे मैं इजीली कर सकता हूँ। तो ये मेरा क्रेडिटर्स है, विजय महाराष्ट्र वाला, ये कंट्रोल एस से मैं इसको सेव करूंगा।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो मैंने स्टॉक आइटम ए बनाया था यहाँ पे मुझे शो हो रहा है। जैसे मैंने एंटर किया, क्वांटिटी में यहाँ पे लेता हूँ 50 क्वांटिटी, मेरा रेट है समझो 1000। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी है एज इट इज आपका परचेस अकाउंट का एक लेजर बनाना ही पड़ेगा कंपलसरी। जैसे मैंने यहाँ पे CGST लिया, स्टेट टैक्स, सेंट्रल टैक्स, ऑटोमेटिक मेरा यहाँ पे कैलकुलेशन आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो रेट डिफाइन किया एज अ स्टॉक आइटम लेवल पे डिफाइन किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको परसेंटेज, कितने परसेंटेज का कैलकुलेशन नहीं हुआ है, आपको क्रॉस वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टैली प्राइम में एक अच्छा सा फीचर्स यहाँ पे दिया है, रिलेटेड रिपोर्ट्स में जाके टैक्स एनालिसिस करके यहाँ पे आप एरो पे क्लिक करके डिटेल्स में भी देख सकते हो। तो ये हो गया मेरा 99% से कैलकुलेशन, जो मैंने वहां पे डाला था 18%। तो सबसे इंपॉर्टेंट और बढ़िया फीचर्स टैली प्राइम में भी दिया है। यहाँ पे जो भी है टैक्स एनालाइज आप कर सकते हो, कितने परसेंट से मेरा कैलकुलेशन हो चुका है। जैसे मैं इसको कंट्रोल ले करके परचेस का एंट्री मैंने सेव किया। नेक्स्ट हम सेम देखते हैं सेल्स का एंट्री। यहाँ पे समझो मैंने श्याम एंटरप्राइजेस, वो मेरा क्रिएटर्स था, यहाँ पे मेरा डेटर्स है। कंट्रोल एंटर करके ये देखो डेटर्स में है मेरा ये पार्टी सिलेक्ट किया मैंने। यहाँ पे फिर से कंट्रोल ए करके आप इसको स्किप कर सकते हो। जैसे स्टॉक आइटम ए यहाँ पे शो हो रहा है, देखो परचेस मैंने किया 15 वाट में, क्वांटिटी मुझे शो हो रही है। इसको मैं सेल करना चाहता हूँ, 50 क्वांटिटी में पूरा सेल कर रहा हूँ। यहाँ पे परचेस रेट था मेरा 1000, मैंने सेल किया 2000 में। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑटोमेटिक तो मेरा कैलकुलेशन आ गया, लेकिन जीएसटी का कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने सेट किया है वो हिसाब से आपको CGST या GST फिर से देना है। जो भी है मेरा कैलकुलेशन ऑटोमेटिक आ गया। आप देख सकते हो जो भी हाथ से अभी भी टैक्स डाल रहे हैं उनका एंट्री GSTR 1 रिपोर्ट में जाके वहां पे फिर से आपको अटक रहा है, मतलब आगे ही नहीं जा रहा है, वो एरर का दे रहा है। मिसमैच आपका जो भी टैक्सेस एंड ड्यूटीज है वहां पे वो मिसमैच में अटक रहा है एंट्री। फिर से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो रिलेटेड रिपोर्ट्स में जाके टैक्स एनालिसिस, सेम यहाँ पे आपको डिटेल्स में करना है। जो भी है अपना 99% से अमाउंट भी आपको यहाँ पे शो हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका जो सेल्स इनवाइस है वो कैसे आता है, यहाँ पे हम देखते हैं प्रीव्यू में जाके। तो ये हो गया आपका सेल्स इनवाइस, जहाँ पे इनवाइस नंबर है, डेटेड है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जैसे HSN कोड, SSC कोड यहाँ पे आपका प्रिंट हो चुका है। तो ये हो गया मेरा सेल्स इनवाइस। यहाँ पे आप परसेंटेज भी देख सकते हैं, कॉलम में 99% से मेरा कैलकुलेशन जो यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये हो गया मेरा एंट्री लेवल। मैंने प्रॉपर बुक भी किया, सेल्स परचेज भी मेरा यहाँ पे बुक हो गया, लेकिन GSTR रिपोर्ट मेरा क्या शो हो रहा है, एंट्री मेरा कुछ गलत है या पार्टी का एड्रेस गलत है या पार्टी का GST नंबर मिसमैच है, वो मुझे कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले आपको जाना होगा डिस्प्ले में, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, और यहाँ पे GSTR 1 जो भी मेरे ट्रांजेक्शन है GSTR 1 सेल्स रिगार्डिंग GSTR 1 में मुझे यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो कुछ एंट्रीज, और यहाँ पे मुझे और एक दिखाना है आपको कुछ, आप जैसे कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हो एंट्री लेवल पे। तो गलती से मुझे यहाँ पे ये श्याम एंटरप्राइजेस है मेरा, चामुंडा एंटरप्राइजेस सॉरी, तो ये इनका एड्रेस है गुजरात का। गलती से मैं इनको लोकल टैक्स लगाया, गलती से, हो सकता है अकाउंटेंट का डेटा कम ज्यादा था या कुछ भी हो सकता है रीजंस। यहाँ पे मैंने गुजरात का पार्टी लिया और गलती से भी मैं उसको लोकल टैक्स लगा रहा हूँ, तो मेरा कैलकुलेशन यहाँ पे कैच नहीं करेगा GST। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं 10 क्वांटिटी लिया और यहाँ पे समझो मैं इनको गलती से भी CGST या GST लगाया तो नहीं कैलकुलेट करेगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने स्टॉक आइटम लेवल पे डिफाइन किया था जो पार्टी का मेरा एड्रेस है वो है गुजरात का। तो आउट ऑफ महाराष्ट्र मुझे IGST कैलकुलेशन कंपलसरी देना है इनवॉइस पे। तो इसको जो भी आप गलत भी कुछ यहाँ पे लेते हो तो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन नहीं आएगा।
जैसे मैं यहाँ पे अभी चेंज किया, IGST लिया, तो मेरा प्रॉपर इनवॉइस यहाँ पे GST कैलकुलेट होके आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनवॉइस लेवल पे भी मुझे प्रॉपर शो हो रहा है IGST। तो यही है कॉन्फ़िगरेशन, आप प्रॉपर करते हो तो कोई टैक्स या ड्यूटीज जो भी है आपका, एक्सपेंसेस जो भी है या रिलेटेड रिपोर्ट से जो उसमें कोई चेंजेस नहीं आता। हम यही एंट्री चेक करेंगे अभी GSTR रिपोर्ट में, डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, यहाँ पे GSTR 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंक्लूडिंग रिटर्न, मेरा एंट्री प्रॉपर यहाँ पे सेव हो चुका है और रिटर्न फाइल करने के लिए यहाँ पे रेडी है। तो जो भी आप देख सकते हो B2B इनवॉइस में मेरा एंट्री यहाँ पे शो हो रहा है। जो भी मैंने अभी एंट्री किया, जैसे चामुंडा एंटरप्राइजेस, श्याम एंटरप्राइजेस से कितना % इंटीग्रेट टैक्स था या सेंट्रल टैक्स था, स्टेट टैक्स था, प्रॉपर मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। ये हो गया सेल्स रिपोर्ट। GSTR 2 में जाके एक एंट्री चेक करते हैं, इंक्लूडिंग रिटर्न में भी आया हुआ है। जो श्रीराम मेरा एंटरप्राइजेस का था, यहाँ पे मुझे प्रॉपर एंट्री शो हो रहा है। ये देखो B2B इनवॉइस में ये हो गया मेरा प्रॉपर एंट्री। कुछ भी मेरा इसमें GST वगैरह मिसमैच रहता या टैक्स रेट मिसमैच रहता तो मेरा एंट्री यहाँ पे अटक जाता, इनकम्प्लीट मिसमैच इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपको फिर से वो करेक्शन करना पड़ता था। तो ये हो गया मेरा GST कॉन्फ़िगरेशन। आप जो ने अभी तक ERP 9 से प्राइम नहीं अपडेट किया है तो जल्दी से जल्दी प्राइम में कन्वर्ट हो जाओ और टैली प्राइम का बेनिफिट ले लो। बस यही बोलना चाहूंगा। इज डन फ्रॉम माय साइड। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। Yeah, thank you, Krishna and Priyanka. It was a knowledge sharing session. Thank you. And now time is overview. So Bhagwati sir, are you here? Yes, Samita. Yes, Samita. Yes sir, over to you. Yeah, thank you, Samita. Thank you, everyone. Very good evening. I am Bhagwati Dindaria from Rajya Lakshmi Solutions Private Limited. So आज का सेशन आपने देखा GST configurations. Yes, GST configurations is after long time we are doing again and again because of कि काफी कस्टमर्स की यह हमारे पास रिक्वायरमेंट आती रहती है। मैं आपको अपडेट करना चाहूँगा कि हम जो भी सेशन कर रहे हैं, जो भी हमारे वेबिनार हो रहे हैं एवरी सैटरडे 4 o'clock, वो आपकी डिमांड के बेस पे हो रहे हैं। हमारे पास जितनी ज़्यादा क्वेरीज और रिक्वायरमेंट जिस पर्टिकुलर टॉपिक्स पे आती है उस वेबिनार को हम लोग, उस ट्रेनिंग सेशन को हम सैटरडे में कवर करते हैं। तो मैं आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि आप लोगों को अगर कोई भी टॉपिक्स अगर लेना है तो आप हमारे जो भी अकाउंट मैनेजर है, सपोर्ट टीम है, जिनके साथ आप कनेक्टेड हैं, उनको आप बताइए कि अभी कौन सा टॉपिक आपका इंटरेस्ट कौन से टॉपिक में। तो वो आपकी वोटिंग के बेस पे हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कौन से टॉपिक पर लोगों की ज़्यादा ग्रीवेंसेस है, इंक्वायरीज है, उसके बेस पे हम टॉपिक ले रहे हैं। तो GST का टॉपिक आज लेने के पीछे हमारा सबसे बड़ा रीजन यही था कि काफ़ी कस्टमर्स काफ़ी समय से हमें बोल रहे थे कि वी हैव नीड अ GST इन द प्राइम। GST तो लोगों ने यूज किया है, लेकिन प्राइम में जाकर के थोड़ा सा और उनको कंफर्ट होना है और कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि GST में काफ़ी फीचर, प्राइम में काफ़ी चीज़ें इन्हांस भी हुई है, जिसके कारण और ज़्यादा ईज टू यूज हो गया है। टैली आपका डे टू डे ईज टू यूज हो रहा है। तो आपको इसके लिए हम लोगों ने टैली GST का फीचर टैली प्राइम में लिया। तो GST के कॉन्फ़िगरेशंस और आज मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन में आपको ये जरूर बोलूंगा कि मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन GST रजिस्टर्ड है, और जो भी GST रजिस्टर्ड है और अगर उसके पास टैली प्राइम है, तो हमने देखा है वैट के टाइम में जो लोगों ने कंसल्टेंट रखे हुए थे, आज की डेट में दे आर नॉट वर्किंग विद अ कंसल्टेंट। ऑपरेशन वगैरह सब कुछ, इवन 3B वगैरह एवरीथिंग दे आर फाइलिंग फ्रॉम हिमसेल्फ। GSTR 1, 3B, GSTR 2 सभी रिटर्न्स वगैरह सभी वो लोग खुद से फाइल कर रहे हैं, क्योंकि टैली में आपको सिंपल कॉन्फ़िगरेशन करना है। वो कॉन्फ़िगरेशन करने में आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आपको राज्य लक्ष्मी, हमारे जैसे पार्टनर्स हैं जहाँ पर आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। एक बार आपने सेटअप प्रॉपर कर लिया तो सॉफ्टवेयर में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो आपको मिस्टेक नहीं होने देगा, जैसा कृष्णा ने आपको प्रैक्टिकल सेशन में बताया। सॉफ्टवेयर खुद से खुद बताता है कि क्या गलती हो रही है, सॉफ्टवेयर खुद से खुद कैलकुलेशन कर रहा है, चाहे वो किसी इंटर स्टेट हुए, इंट्रा स्टेट हुए, मल्टीपल टैक्स हुए, सिंगल टैक्स हुए,
आपका मल्टीपल टैक्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में है तो आप उस हिसाब से टैली को कॉन्फ़िगर कीजिए। आपका सिंगल टैक्स है तो उस हिसाब से कॉन्फ़िगर कीजिए। मल्टीपल टैक्स इन सिंगल इनवॉइस है तो वैसे कॉन्फ़िगर कर लीजिए। मल्टीपल सिंगल टैक्स इन सिंगल इनवॉइस है, दिस इज वेरी सिंपल। तो ये सभी चीजों को आप मेंटेन कर पाते हैं और स्टेट वाइज कंप्लायंस वगैरह मेंटेन कर पाते हैं। और आफ्टर दैट ऑल द सिनारियोज, ऑल द थिंग्स के बाद में आप देख पाते हैं कि आपका एंट्री एकदम प्रॉपर हो रहा है। अगर कहीं भी एरर है तो टैली आपको सामने से बताता है कि कहाँ पर आप मिस्टेक कर रहे हो और या आपने कुछ गलत किया है तो कहाँ गलत किया है उसकी भी डेफिनेशन वो देते हैं। तो ये बहुत अच्छा कंट्रोल है टैली के ऊपर जीएसटी को करने के लिए। तो आप इसके थ्रू अगर कॉन्फ़िगर करके जीएसटी को अगर प्रॉपर यूज करना चाहते हैं तो मैं बोलूंगा कि आप लोगों के पास अगर आपने जीएसटी कॉन्फ़िगर करके आप पूरा यूज कर रहे हैं, वेल एंड गुड। अगर आपको हमसे सपोर्ट लगेगा तो डेफिनेटली आप हमसे कनेक्ट कीजिए। आपका काम इससे काफी आसान हो जाएगा। अगर आप एक्सेल में जीएसटी के रिटर्न्स वगैरह बना रहे हैं तो आपको डबल एंट्री नहीं करनी पड़ेगी, आपको डेटा एक्सपोर्ट वगैरह नहीं करना पड़ेगा। आपकी सभी चीजें यहीं से हो जाएगी, जेएसएन फाइल वगैरह एवरीथिंग आप यहीं से जनरेट करके अपने जीएसटी पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज आपकी टाइम सेविंग होगी। आपके पास एकदम प्रॉपर डेटा आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली के अंदर रहेगा, जो कभी भी अपकमिंग फ्यूचर में कभी कोई भी जीएसटी की तरफ से कोई भी ऑडिट आता है या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि आपका डेटा में सब कुछ प्रिपेयर है, प्रॉपर है, तो कभी भी आपको अलग से एक्सेल फाइल, पीडीएफ फाइलें आपको सेव करके रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको टैली का डेटा खोलना है और आपको इमीडिएट स्टार्ट हो जाना है। यू कैन जस्ट प्रिंट एंड एक्सपोर्ट इन द पीडीएफ एक्सेल एंड यू कैन अपडेट टू द डिपार्टमेंट, जो लॉन्ग टर्म्स की बात कर रहा हूँ। तो ये काफी एडवांटेज है, काफी आसान हुआ है इनसे काम। जीएसटी के जो फीचर्स हैं, जो टैली की कैपेबिलिटी है, सिंप्लिसिटी है, इससे आपका काम काफी आसान हो गया। जो आपके कस्टमर्स और आप लोगों के फीडबैक्स हैं, जिसके बेस पर हम डे टू डे प्रोडक्ट में इन्हांसमेंट कर रहे हैं, अपडेशंस कर रहे हैं, ट्रेनिंग सेशंस कर रहे हैं और आपको हम कॉन्फ़िगर करवाने की भी ट्राई कर रहे हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमसे कनेक्ट कीजिए इन चीजों के लिए। नेक्स्ट, इसके बाद में हमारे वेबिनार जितने भी हो रहे हैं, जितने भी सेशंस हो रहे हैं, ये सबके सब सेशन हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड होते हैं। नेक्स्ट वीक में आपको ये सेशन भी अपलोड मिलेगा। तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल में कोई भी फीचर्स को लेकर के मल्टीपल टाइप ऑफ वीडियोज आपको मिलेंगे, जहां पर आप टैली को पूरी तरीके से लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में और उसका एडवांटेज ले सकते हैं, जिसके लिए आपको कहीं भी कोई एडिशनल पे करने की जरूरत नहीं होती और आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो उतनी ट्रांसपेरेंसी और उतनी क्लियर स्टेटमेंट एंड उतने अच्छे ढंग से प्रेजेंटेशन एंड प्रैक्टिकल सेशन दिए गए हैं। तो आप हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, जो हमारे चैट के अंदर में डाला गया है। आफ्टर दिस सेशन आप उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी हमारे चैट बोट में जो यूट्यूब का लिंक डाला गया है, आप इमीडिएट उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको इसका बेनिफिट भी मिलता रहेगा। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। सो guys, over to you now. Yes, thank you, sir, for your valuable time. And this session will be uploaded in our YouTube channel. So be connected to our YouTube or social media channels and be connected to our key account managers for any support and any requirement. So we are wound up the sessions. Thank you, everyone. Thank you, everyone. See you soon in next webinar. Thank you. Bye bye. Thank you, Arun. Thank you, sir. Bye.